आए हम दुआ करें। 살아계신 하나님께 감사를 드립니다. ऐ जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। 오늘도 하나님의 말씀으로 훈련받게 하시니 감사합니다. खुदावंद, आज भी तूने ये मौका दिया ताकि तेरे कलाम में से सीख सके और ट्रेनिंग हासिल कर सके। 성삼위 하나님이 시공간을 초월하여 역사해 주옵소서. और खुदावंद, आज भी पाक तसलीस जो है वो आसमान और जमीन पर मारवाई कुव्वतों के साथ हमारे अंदर काम करे। 우리 현지 목사님들이 복음으로 완전 해답나게 하옵소서. और तमाम खादमों को खुदावंद कलाम के जरिए जवाब हासिल करने की तौफीक अता कर। 그래서 많은 제자들 세울 수 있도록 축복하옵소서. और खुदावंद ज्यादा से ज्यादा शिगिर्दों में इजाफा करने की बरकत अता कर। 통역하는 우리 선교사님에게도 성령의 충만함을 주옵소서. और खुदावंद तो जो तर्जुमा कर रहा है पास्टर को भी रूह की ममूरी अता कर। 인터넷도 끊어지지 않고 연결 잘 되게 해주시옵소서. और खुदावंद इंटरनेट के मसाइल भी यीशु नासरी के नाम में खत्म हो जाएं। 부족한 종에게도 성령을 따라 복음을 증거하는 증인 되게 하옵소서. और जिस तरह रूह हमें सिखाए बाइबल के मुताबिक गवाह बनने की तौफीक अता कर। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 고린도전서 4장 1절에서 2절을 보겠습니다. हाँ जी, पहला करंथियों उसका चौथा बाब 1 से 2 तक पढ़ना है। 네, 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다. 그리고 맡은 자들의 구할 것은 충성이다. 아멘. हाँ जी, लिखा है, आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के वेदों का मुख्तार समझे, और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। आमीन। 아멘. 그 옆에 계신 목사님들에게 예수는 그리스도 모든 문제 해결하셨습니다 하고 인사 한번 하세요. हाँ जी, एक दूसरे से कहें जी, यीशुनन क्रिस्तो तमा मोदन मुझे हेगलचा। हाँ जी, कहें जी एक दूसरे से। आमीन। 아멘. 아멘. 저 선교사님, ये 그쪽 그림을 보고 이렇게 하면 더 좋을 것 같는데. तुगो माय देख 그쪽 देखो 그 현장 그림. 아니 현장에 다 봤는데 옆에 देखो 내 얼굴은 좀 이렇게 나오고. 아니 देखो는 안 하고 그 사람들 나오고 있어 지금. 나 인별은 안 나오는데. भाई साहब कह रहे हैं जी मेरे पास नहीं आ रहे, आप देखे जरा कहाँ से भाई साहब के पास नहीं जा रहे आप। 네, 현장 그림을 내가 보고 하면 좋을 것 같아요. वो कहते हैं जी मैं आपको देखकर बताना चाहता हूँ, लेकिन आपकी तस्वीर नजर नहीं आ रही भाई साहब को। 아니 또 나가버리네. 내 현장을 보고 하면 상당히 더 좋을 것 같아. ये 알겠습니다. हाँ जी, बस देखे जी, वो कह रहे नजर नहीं आ रही। 됐어. हाँ जी, आ रहे हैं, नजर आ रही है। 왔다가 또 들어가네. वो कहता है कि आते जाते हैं जी। जरा आसमान की तरफ कम और नीचे की तरफ किया करे ना कैमरा, तो फिर सही तौर पर नजर आता है। वो ऊपर को ज्यादा नजर आता है। तो वो कहते हैं फिर चले गए हैं। आप मेरे कैमरे में आ रहे हैं, लेकिन उनके कैमरे में क्यों नहीं आ रहे? आप कैमरा थोड़ा सा नीचा करें। हाँ जी, और ऊपर लेके जाए, ऊपर लेके और थोड़ा सा और ऊपर करें। आसमान को नहीं देखना, आपको देखना है। पर नीचे नहीं, ऊपर। अब ठीक कर रहे थे, फिर तुम नीचे ले आए हो। कैमरा थोड़ा सा ऊपर करें। नजदीक करें और ऊपर करें कैमरा। आपको
예, 목사님. 할까요? 목사님, 잘 보입니까? 아니, 잘 안 보입니까? 그림 내 얼굴만 나오고 그 얼굴 안 나오는데. जी भाई साहब एक को सारे आ रहे ने 나와서 이제 नहीं, 나왔어. 예. हाँ, ये, हाँ 예, जी, 좋아. आगे, आगे, आगे। दो हाथ 나가네. Praise God. 예수님 그리스도. तो आमीन। वो कह रहे हैं आमीन। मेरे पास नहीं आ रहे, मेरे पास आ रहा है आपका सारा। 아니 나왔다가 들어가고 भाई साहब वो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ 목사님, 우리 뭐 저기 핸드폰으로 다 나왔는데. 내는 그 현장 얼굴 안 나와요. 그랬어요? 그 어떻게 하는 거죠? 내 얼굴은 나오는데 현장 그림이 안 나와. 아, 왜 그럴까요? 목사님이 지금 핸드폰으로 하고 있습니까? 안 하면 핸드폰. 그러면 조금 앞으로 가세요. 앞으로 하세요. 두 번째로 하세요. 두 번째로. 조금 앞으로 당겨. 왔다 갔다 하네. 아니, 앞으로 당겼어요. 조금 앞으로 당겼어요. 아니, 그래도 안 나오는데. 목사님은 1번 하고 있는데 조금 앞으로 당겨요. 그러면 다 나와요. 나보고 딴 거라고. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ 앞으로 당겨요. 여기가 2개, 3개, 1번, 2번, 3번 있으니까 3번으로 가세요. 앞으로 ਭਾਈ 조금 ਸਾਹਿਬ 앞으로. ਠੀਕ ਹੈ 2단계로 가세요. 2단계로 가면 끝에 나와요. 예. 2단계. ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ 예. 그거 잘 어떻게? 나와요. 됐어 이제. 다 됐습니다. 다 오지? 예, 잘 나와요. 또 아, 나가봐. 예. 아, 예. ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 또 ਦਿਸਿਆ 나갔어요. 됐네. 아니. 알아서 조금 이따 진 목사님 오면 내가 목사님한테 어떻게 해야지. 아니, 우리가 핸드폰 조금 앞으로 하면 위에 사진 앞으로 그러면 또 나와요. 두 번째 2단계로 가면. ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਵੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੋੜੇ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਕਰ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਾਮ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ 그래서 ਸਾਨੂੰ 합시다 목사님. 아, 예. 이제 잘 나오네. 아, 예. 아이고 또 가버리네. 아니, 목사님 제가 조금 이따 신 목사님 오면 어떻게 하는 거 제가 목사님이 가르쳐 주실래요? 예. 알았어요. 예. 그럼 강의 둘째 강의부터는 그렇게 합시다. 아, 예. 예. 내 얼굴만 딸랑 나와. 아, 예, 알고 있어. 내가 무슨 말 나도 알아요. 지금 내가 오늘 강의합시다. 예. 시간이 많이 갔어. 예. 예, 오늘도 여러분과 함께 복음을 증거할 수 있어서 하나님께 감사드립니다. और मैं आज भी खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे मौका दिया ताकि आप लोगों के साथ खुदा का कलाम शेयर कर सकूं। 여러분의 얼굴 보며 하면 좋은데 이때 얼굴이 나왔다가 또 꺼지고 나왔다가 꺼지고 그렇게 합니다. अब वो कह रहे हैं कि मैं चाहता था कि आपका चेहरा देखकर आपको पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स है सामने हो तो कोई पढ़ाने का ज्यादा मजा आता है समझाने का समझ आती है लेकिन वो उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे आपको देखना है वो नंबर 1 पर है और वहां से सिर्फ आप नहीं आपका नजर आ रहा है मुझे उसको नहीं नजर आ रहा उसको समझ नहीं आ रही कि कैसे करना है। 두 번째 강의부터는 잘 될 줄로 믿습니다. और मेरा ईमान नहीं आपका आ रहा है ठीक है कुछ ना करे ठीक है बिल्कुल कुछ ना करे ठीक है ये 목사님 네, 나와요. 예, 됐습니다. 예. 내 소리 잘 들리죠? 예. 예. 시작할게요. 합니다. 예. 되지요, 목사님? 예. 됐습니다. 이 한 분은 차에서 듣나 봐. 예. 저 목사님이 지금 집에서 오고 있다고요. 예. 저는 목회를 거의 30년을 했습니다. ये पास्टर साहब को तकरीबन 30 साल हो गए हैं पास्टर वर्क करते हुए। 예, 30년을 하면서 마음에
꼭 남겨진 것이 하나 있습니다. कि मेरे दिल में एक चीज जो है वो अभी तक छुपी बैठी है या मैंने अपने दिल में रखी हुई है। 영원히 이 마음에 남겨진 것이 있습니다. कि हमेशा हमेशा के लिए एक चीज जो है वो मेरे दिल में बैठी हुई है। 그게 첫 번째는 렘넌트를 키워야 된다는 걸 제가 알게 됐어요. तो पहली चीज है रेमनेंट, यानी कि बकिया, हमारे जो आने वाली नस्ल है उनको बचाने का इरादा पास्टर साहब ने अपने दिल में रखा हुआ है कि उनको किस तरह बचाना है। 목회는 가장 중요한 게 렘넌트를 키워서 미래 지도자로 세우는 것이 아주 중요합니다. कि जो पास्टर होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज रेमनेंट को बचाना होता है, जो हमारे आने वाली नस्ल है, बच्चे, ताकि खुदा का काम उनके जरिए आने वाली नस्ल में चलता रहे। 그리고 두 번째는 하나님은 정확하게 심은 대로 거두게 하는 정확한 하나님이라는 것을 저는 깨닫게 됐습니다. तो ये है कि खुदा हमें जो बताता है कि किस तरह हमने इन लोगों को बचाना है, ये खुदा ने मुझे बेदारी बख्शी है। 하나님은 정실로 심은 대로 주시고 믿음대로 역사하는 그런 하나님이라는 것을 제가 알게 됐어요. तो मैं समझता हूँ कि जो चीज हमारे दिल में रहती है वो खुदा से हम दुआ करते हैं तो फिर खुदा उस ख्वाब को, उस विजन को जो है वो पूरा करता है। ये मेरे ईमान का हिस्सा है। 그리고 세 번째는 문제의 유일성과 해답의 유일성이었습니다. ये मसाइल का जो मुनफरद जवाब है वो हमारे पास है। 이 땅의 문제는 한 가지인데 그게 하나님 떠난 문제란 것을 정말로 저는 깨달았습니다. और मैंने ये देखा है कि मसाइल का शुरू और मसाइल का जो बुनियाद है वो एक ही मसला है। 문제가 하나이기 때문에 인생의 해답도 유일한 해답인 것을 제가 깨닫게 됐습니다. तो अगर जवाब सवाल एक है, मसला एक है, बुनियाद एक है, तो हमारे पास मुनफरद ये जवाब भी एक ही है उसका। 정말 여러분에게 제가 하고 싶은 얘기는 이 땅의 문제는 하나님 떠난 유일한 문제입니다. कि हमारे जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने मर्जी दुनिया के मसाइल हो, उनकी बुनियाद, उनकी जड़ एक है। 그래서 해답은 오직 예수 그리스도라는 것을 저는 깨닫게 됐습니다. और मुझे यह भी पता चला है कि उसका जवाब जो है वो उन तमाम सवालों का या एक जवाब भी जवाब मसीह यीशु, उसके अलावा कोई जवाब हमारे पास नहीं है। 그 눈을 가지고 사람을 보면은 모두가 다 창세기 3장에 매여 사는 것을 볼 수 있었습니다. तो आप उन तमाम चीजों में पैदाइश तीसरे बाब में लोगों को देख सकते हैं जिनके पास जवाब नहीं है, मसाइल में गिरे, उनको आप पैदाइश तीसरे बाब में देख सकते हैं कि वो वहां अभी तक रह रहे हैं। 그래서 저는 남은 목회를 다른 말 하지 않고 오직 예수만 그리스도라는 복음만 증거하려고 합니다. तो इसलिए मैं दूसरे लोगों की तरह कोई और बातें नहीं करता। मैं सिर्फ अपने आप को, मैंने ये महसूस किया है कि मैं जब तक जिंदा हूं यीशु ही मसीह है, इसकी खुशखबरी लोगों को सुनाऊंगा। 우리 목사님들에게 저는 꼭 부탁드리고 싶습니다. और मैं तमाम पास्टर से भी दरख्वास्त करता हूं। 인간이 죄 문제 해결을 받고 사단에서 해방되고 하나님 만날 수 있는 길은 오직 예수 그리스도 외에는 없습니다. कि तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए, तमाम गुनाहों से खलासी हासिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मुनफरद राह है और वो यीशु के अलावा कोई नहीं। 아마도 우리 목사님도 저하고 마음이 똑같을 줄로 저는 믿습니다. तो मैं दुआ करता हूं, मैं सोचता हूं कि जिस तरह मेरा दिल है, आप लोगों का भी दिल इसी तरह होगा कि हमने यीशु के अलावा किसी की मुनादी नहीं करनी।
그래서 우리는 지역과 나라와 상관없이 한 마음으로 이렇게 세계 복음화를 하고 있습니다. तो इसलिए हम एक दिल एक जान होकर ये वर्ल्ड एवेंजलिज्म आलमी मनादी कर रहे हैं। 그래서 오늘은 4장, 5장, 6장, 한 7장까지 여러분과 함께 은혜를 나누려고 합니다. तो आज मैं चौथा, पांचवा, छठा और सातवें बाब तक हम जो है आज पढ़ेंगे। 오늘 제목은 전도자입니다. 전도자. तो आज है मुबश्शिर या एवेंजलिस्ट। 그리스도를 증거하는 우리는 전도자입니다. कि हम खुदावंद मसीह यीशु के गवाही देने वाले उसके गवाह हैं। 자, 이 땅에서 여러분 가장 축복이 뭐라고 생각하십니까? तो आप इस दुनिया में रहते हुए सबसे बड़ी बरकत किसको तस्वर करते हैं, किसको ख्याल करते हैं? ये सबसे बड़ी हमारी जिंदगी की बरकत है। 가장 축복은 복음 가지고 복음 전하는 전도자의 삶을 사는 것이 나는 이 땅에서 가장 귀한 축복이라고 생각합니다. तो मैं सोचता हूं कि सबसे बड़ी बरकत कलाम को हासिल करके, कलाम को दिल में रख के इस कलाम की मुनादी करना और एवेंजलिस्ट की जिंदगी बसर करना सबसे बड़ी बरकत है। 자, 그래서 전도자는 오늘도 복음을 사모하기 때문에 우리는 같이 이 시간을 갖습니다. तो इसीलिए कलाम के बढ़ाई के लिए, कलाम को फैलाने के लिए आज भी खुदा ने में ये वक्त दिया है कि हम इकट्ठे वक्त आपस में इकट्ठे गुजारे। 우리가 비록 줌으로 메시지를 주고받지만은 우리의 마음은 다 전도자의 마음인 줄로 믿습니다. कि ये है कि हम जूम के जरिए तो मिल रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन दरअसल हम एक ही हैं। 예수가 그리스도라는 복음의 비밀을 가진 우리는 전도자입니다. और हमारे पास यीशु ही मसीह का भेद है, इस भेद को फैलाने वाले हम सब एवेंजलिस्ट हैं। 자, 오늘 4장도 바울은 이렇게 말씀합니다. कि आज चौथे बाब में पौलुस रसूल भी इस तरह से हमें बताता है। 4장 1절에 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다 이렇게 말씀합니다. तो चौथा बाब उसकी पहली आयत में ये बात लिखी हुई है कि आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। 그리스도의 일꾼 하나님 비밀을 맡은 자 이 사람들을 가리켜 전도자다 그렇게 얘기합니다. और ये कहता है कि लोग यही समझे कि हम सब जो हैं, जो खुदा का कलाम फैलाने वाले हैं, हम खुदा के एवेंजलिस्ट और मुबश्शिर हैं। 자, 그러면 그리스도의 일꾼이요 했는데 자, 그럼 그리스도의 일꾼이 뭘까요? तो लिखा हुआ है हम मसीह का खादम। मसीह के खादम हम क्या है, क्या खिदमत करते हैं? 우리가 일꾼이 돼야 되는데 충성된 일꾼이 돼야 됩니다. तो हमें क्या है कि बेहतरीन जो है वो खादम बनना चाहिए, सिर्फ नाम नहाद खादम नहीं। 우리는 다른 일꾼이 아니고 하나님의 일을 하는 하나님의 일꾼입니다. कि हम कोई और काम करने वाले नहीं, हम सिर्फ और को खिदमत करने वाले खुदा के खादम, खुदा की खिदमत करने वाले हैं। 바울도 하나님의 일을 하는 하나님의 일꾼이었습니다. और पौलुस रसूल भी कहता है कि हम भी खुदा के खादम, मसीह के खादम हैं। 자, 우리는 목회자인데 목회는 하나님의 일꾼이 하나님의 일꾼을 세우는 게 목회다 그래 얘기할 수 있습니다. और ये जब हम खादम हैं तभी हम खुदा के खादम जो काम करने वाले हैं उनको उनमें इजाफा कर सकते हैं, उनको उठ खड़ा होने का मौका दे सकते हैं। 그러면 그리스도 일꾼의 기본입니다. 기본이 중요해요. 기본을 우리가 어떻게 갖춰야 되나 그게 중요합니다. तो जो खुदा के खादम हैं उनकी कुछ बुनियादी बातें होती हैं। 첫 번째 기본입니다. 첫 पहला 번째는 문제, 유일한 문제와
유일한 해답의 메시지의 답이 나야 됩니다. कि हमारे पास सबसे पहले कि जो ये मुनफरद किस्म का ये मसला है, इसका हमारे पास जवाब भी होना चाहिए। 예수님이 이 땅에 왜 오셨느냐? 인간 문제 해결하러 오셨습니다. कि मसीह का इस दुनिया में आना क्या है? जिंदगी के मसाइल को हल करने के लिए मसीह इस दुनिया में आया। 하나님이 왜 우리를 하나님의 자녀 삼아 주셨느냐? 문제 해결해 주라고 자녀 삼아 주셨어요. तो उसने हमें क्यों अपने बेटे होने का शर्फ बख्शा, ताकि हम बच्चे होते इन मसाइल का हल लोगों को बता सके। 그래서 그리스도 일꾼의 기본, 유일한 문제, 유일한 해답을 정확히 알고 있어야 돼요. तो इसलिए खुदा के खादमों को, खुदा के फर्जंदों को, खुदा के भेदों को भी जानना चाहिए। मसाइल को, भेद क्या है? मसाइल को जानना और उसके जवाब को जानना। 사도행전 17장 3절에 보면 바울이 전도자의 고백을 볼 수 있습니다. तो हम अगर अमाल की किताब उसमें देखें तो हम पौलुस रसूल का क्या उसे कहते हैं, एवेंजलिस्ट जिंदगी जो है उसकी वो देख सकते हैं, मुबशराना जिंदगी। 사도행전 17장 3절 제가 읽어보겠습니다. तो अमाल 17वां बाब उसकी तीसरी आयत में जो है वो आपके साथ सामने पढ़ूंगा। 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니, 이렇게 복음 전했습니다. तो मसीह ये पौलुस रसूल ने किस तरह कहा था? अमाल की किताब उसका 17वां बाब उसकी तीसरी आयत है, और उसके मानी खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूं मसीह है। 아멘. 그런데 आमीन। 이 그리스도를 전했는데 17장 4절을 제가 읽어봅니다. तो उसके बाद 중에 चौथा, 어떤 사람 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀부인도 권능을 받고 바울과 시라를 따르라, 그렇게 말씀합니다. तो चौथी आयत उसमें लिखी है, और उनमें से बाज ने मान लिया और पलूस और सलास के शरीक हुए, और खुदा प्रस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बतेरी शरीफ औरतें भी उनकी 아멘. शरीक हुई। आमीन। 우리가 정확하게 문제의 답을 주면은 틀림없이 영혼이 살아납니다. अगर हम उनको जवाब देंगे तो हम बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बचा सकते हैं कि वो भी हमेशा की जिंदगी के वारिस हों। 그러니까 예수가 그리스도라고 증거했는데 헬라인, 큰 무리, 귀부인, 돈 많은 엘리트들이 복음 받고 주께로 돌아오는 거예요. तो हमने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे यूनानी, एक बड़ी जमात यानी कि अमीर, जो अपने आप को फिलोसफर या अपने आप को आलम समझते हैं, वो तमाम अमीर क्या आलम क्या तमाम लोग किसमें मसीह को उन्होंने मसीह को कबूल किया और मसीहत में शामिल हुए। 일꾼의 기본, 유일한 문제, 유일한 해답을 가지고 있어야 돼요. और ये है बुनियादी चीजें एक एवेंजलिस्ट की, एक मुबशर की, कि आपको किस तरह आपको होना चाहिए। 네, 두 번째, 우리는 그리스도의 비밀을 누릴 수 있어야 됩니다. तो दूसरी बात, जो मसीह के वेदों में हमें मसरूर रहना चाहिए। 네, 우리가 있는 것은 다른 사람에게 줄 수 있어요. कि जो हमारे पास है वो हम दूसरों को दे सकते हैं। 네, 사도행전 3장 6절에 베드로는 내게 있는 걸 네게 준다, 그렇게 말씀했습니다. तो पतरस उसमें बात ये कहता है कि जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूं। 그랬더니 40년 된 안진뱅이가 일어난 것을 우리는 볼 수 있습니다. तो हम देख सकते हैं कि 40 साल का जो बीमार था वो ठीक हुआ। 우리도 그리스도의 비밀을 누리면은 줄 수 있습니다. कि जब हम मसीह में मसरूर रहेंगे
तभी हम दूसरों को मसीह दे सकते हैं। 그리스도의 비밀, कि 마귀의 मसीह 일을 멸하신 왕의 비밀입니다. और ये है कि मसीह का भेद शैतान के सार को कुचलने वाला मसीहा दूसरों को देना। 그리스도의 비밀, 과거, 현재, 미래 모든 죄 해결하신 제사장의 비밀입니다. और ये है कि तमाम मसाइल को हल करने वाला हमारा काहिन, ये भेद लोगों को बताना। 그리스도의 비밀, 하나님 따는 우리를 하나님 만나는 길을 여신 참 선지자의 비밀입니다. और मसीह का भेद कि खुद एक नबी बनकर इस दुनिया में आना ताकि हमारा मिलाप खुदा के साथ करवाए, ये भेद लोगों को बताना। 우리는 이 비밀을 누리고 이 비밀을 전달하는 일꾼이 돼야 될 줄로 믿습니다. और हमारा मान है कि ये भेद बताने वाले हमें मुबशर बनने की जरूरत है। 그리고 이렇게 하나님의 비밀을 맡은 자다 이렇게 말씀합니다. तो इसलिए लिखा हुआ है कि खुदा के भेदों का मख्तार समझे। 세 번째, 그리스도의 일꾼은 하나님의 비밀을 맡은 자입니다. और जो खुदा के भेदों को जानते। 맡겼다는 말은 누군가 나에게 주었다는 그 말이에요. ये है कि किसी ने जो हमें दिया, खुदा के भेदों को रखने वाला। 자, 그러면 하나님의 비밀이 뭘까요? तो खुदा का भेद क्या है? 이 비밀은 누구나 다 아는 것이 아니잖아요. कि ये भेद हर कोई नहीं जान सकता। 하나님의 비밀이 뭘까요? तो खुदा का भेद क्या है, ये सबसे जरूरी है। 하나님의 비밀은 그리스도의 비밀입니다. और खुदा का भेद मसीह है। 골로새서 2장 4절에 보면 이렇게 말씀합니다. कुलसोएसो ईजा 골로새서 2장 2절. ये हाँ जी, कुलसियों दूसरा बाब उसकी दूसरी और तीसरी है। 제가 읽어보겠습니다. 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이라 말씀하고 있습니다. हाँ जी, ये दूसरी आयत है, उसमें लिखा हुआ है ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में इकट्ठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने। 아멘. आमीन। 하나님의 비밀은 그리스도입니다. और खुदा का भेद मसीह है। 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감춰져 있다라고 말씀합니다. तो उसमें लिखा है जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा है। 우리는 하나님의 비밀인 그리스도를 누리고 살아가야 돼요. तो हमें मसीह के इस भेद में मसरूर रहते हुए अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए। 바울은 그리스도를 어느 정도 누리느냐? 제가 성경을 통해서 말씀하겠습니다. तो मैं ये आपको बताऊंगा बाइबल में से कि पौलुस रसूल इसमें कितनी हद तक, कितने लेवल तक मसरूर रहता था। 빌립보서 1장 20절에서 21절에 이렇게 말씀합니다. कि अगर हम देखें फिलिपियों उसका पहला बाब 20 से 21 आए। 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익하다 이렇게 말씀했어요. 20वीं 21वीं आयत में बात लिखी हुई है, चुनाचे मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूं, बल्कि मेरी कमाल दिलेरी के बाद जिस तरह मसीह की
तस्लीम मेरे बदन से के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, ख्वाह मैं जिंदा रहूं ख्वाह मरूं, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। 아멘. आमीन। 바울은 하나님의 비밀인 그리스도를 어느 정도 누렸냐? 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 좋다라고 할 만큼 그리스도를 누렸어요. और किस किस हद तक पौलुस रसूल जो है वो मसीह में मसरूर रहता है कि मैं जीऊं मरूं, मर जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। यहां तक मैं जिंदा रहूं या मरूं, ये मैं लेकिन मैं मसीह में मसरूर रहता रहूंगा। 예수 그리스도를 믿고 영접하면은 성령이 우리 안에 옵니다. कि जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है 그 성령께서 우리와 영원히 함께 하십니다. और ये पाक रूह जो है वो एक दो दिन नहीं, हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है। 그 성령께서 그리스도의 비밀을 깨닫게 하십니다. और वही पाक रूह जो है हमें खुदा के वेदों से आश्कार करता है, जानने वाले बनाता है। 자, 그래서 우리는 하나님이 비밀인 그리스도를 우리가 깨닫고 누려야 하나님의 좋은 일꾼이 될 수 있습니다. और तभी जब रूह कुदुस हम में आएगा, हम खुदा के वेदों को जानेंगे और उसमें मसरूर रहेंगे। ये वो हमें अपने पाक रूह जो है वो खादमों को खुदा के वेद जानने वाला हमें बताता है, मसरूर रहने की तौफीक अता करता है। 그리고 이렇게 말씀합니다. तो हम देखते 맡은 हैं कि 자를 फिर 구할 것은 충성이다 이렇게 얘기합니다. तो क्या लिखा हुआ है कि अभी हमने पढ़ा था कि आदमी हमको मसीह का खादम और वो खुदा के वेदों का मुख्तार जाने। 우리는 하나님의 비밀인 그리스도를 맡았습니다. 맡김을 받았습니다. तो हम जो है खुदा के वेदों के मुख्तार यानी कि हमारे खुदा ने वेद सुपुर्द किए हुए हैं, जानने की तौफीक दी है मसीह में। 맡은 자가 해야 할 것은 충성이다 그렇게 말씀합니다. तो ये है कि मुख्तार क्या है कि खुदा ने वाकई हमें ये रूह में कुव्वत दी है कि हम इस वेद को जाने। 이 충성을 이해하려면은 게으른 사람은 충성된 사람이 아닙니다. और जो इस वेदों को नहीं जानता वो खुदा और आगे के लिखा हुआ दयानतदार, यानी कि वो दयानतदार नहीं, वो खुदा के साथ मुखलस नहीं, जो खुदा के वेदों को नहीं जानता और कहे जी मैं खुदा का खादम। 충성된 사람은 주인이 맡긴 것을 위하여 생을 다해 헌신합니다. और जो लोग होते हैं, जो दुनियावी लोग भी जब उनका मालिक उनके को काम सुपुर्द करता है तो वो तमाम काम को दयानतदारी के साथ करते हैं। 하나님이 우리에게 충성되의 여김의 은총을 주셔서 그리스도의 비밀을 맡기셨어요. और खुदा ने हमें जो हम उसके खादम हैं आपने वेद हमारे सुपुर्द किए हैं, में मुख्तार बनाया ताकि इन वेदों को लोगों तक पहुंचा सके। 충성된 자는 어떤 상황 속에도 변하지 않습니다. और ये है कि जो मुख्तार होते हैं जब तक वो ये भेद लोगों को बताना ले उन्हें सुकून जो है वो नहीं होता, वो आराम से नहीं बैठ सकते। 변질된 사람은 잘 변하는 사람은 충성된 일꾼이 될 수 없습니다. कि किसी तरह भी जो लोग हैं जो खुदा के वेदों को जानने वाले हैं वो आराम से नहीं बैठ सकते जब तक ये वेद जब तक वो 하나님은 अपने वेद लोगों को न बता सके। 하나님은 어제나 오늘 영원토록 동일하신 하나님으로 변하지 않습니다. कि जो मसीह जो है जो आज कल बल्कि हमेशा तक यकसा है, वो कभी भी तब्दील नहीं होता, वो ला तब्दील है। 우리 안에 계신 성령 하나님도 영원히 변하지 않으시고 우리와 함께합니다. और जो रूह हमारे रूह कुदूस हमारे अंदर बसता है वो भी ला तब्दील है। 그렇다면은 하나님의 일꾼인 우리는 변하면 안 됩니다. तो हमें
जो है खुदा के लोगों को भी मसीह में मजबूत होना चाहिए, तब्दील नहीं होना चाहिए, कभी ये बात कर ली कभी वो कर ली, हालात के मुताबिक तब्दीली, मसीह में मजबूत होना चाहिए, वो तब्दील, वो चीज मसीह में तब्दील होना चाहिए। 환란이 와도 핍박이 와도 죽음이 와도 예수가 그리스도란 이 복음 증거하는 충성된 목회자가 해야 될 줄로 믿습니다. और ये भी हमारा ईमान होना चाहिए है कि हालात जैसे मर्जी हो, मुश्किलात आए, दुख तकलीफें आए, मौत भी आए, लेकिन हमें यीशु ही मसीह की गवाही जो है वो देनी चाहिए। 그리고 충성된 사람은 모든 사람을 수용하고 이해합니다. और जो दयानतदार होते हैं वो बात को समझते हैं और दयानतदारी के साथ ही लोगों को सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं। 사람을 얻으려면은 사람을 이해하고 수용할 수 있어야 됩니다. और ये है कि जब खत्म होता है वो दयानतदारी यही है कि वो सच्चे दिल के साथ ही खुदा के वेदों को लोगों तक पहुंचाए। 우리는 좋은 사람도 싫은 사람도 어떤 사람도 복음으로 수용할 수 있는 사람이 돼야 돼요. और हम अच्छे हों बुरे हों, हमें सबसे पहले है खुदा की खिदमत में, खुदा के वेदों में दयानतदारी जो है करनी चाहिए। 예수님은 제자들에게 원수라도 사랑하라고 말씀하셨습니다. और खुदा ने क्या कहा है कि अपने दुश्मनों से भी, अपने मुखालफों से भी प्यार करो। 70번 7번이라도 용서하라고 말씀하셨습니다. और कहा है कि सबको मुआफ करो। 그래서 우리는 충성된 일꾼으로 모든 사람을 수용할 수 있어야 됩니다. तो हमें मुख्तार समझते हुए, दयानतदार समझते हुए सब लोगों को हमें क्या है मुआफ करना चाहिए। 그리고 충성된 사람은 모든 사람에게 본이 돼야 됩니다. तो जो दयानतदार है वो जो होते हुए हमें सबके साथ एक जैसा सलूक जो है वो करना चाहिए। 옆에 있는 사람이 나도 저렇게 살고 신앙생활을 해야 되겠다라고 본이 될 수 있어야 됩니다. तो हमें भी जिस तरह कलाम हमें कहता है उसी तरह जिंदगी बसर करना, और जो हमारे साथ है उसी को भी तलकीन करनी चाहिए कि वो भी इसी तरह जिंदगी बसर करे। 베드로전서 5장 1절에서 4절까지 한번 읽어보겠습니다. हाँ जी, पहला पतरस निकाले जरा, उसका 2 से 4 तक पढ़े जरा। हाँ जी, पहला 제가 한번 पतरस उसका 5। 읽어보겠습니다. 제가 읽을게요. 너희 중 장로들에게 권하노니 나는 함께 된 장로의 그리스도의 고난의 증인이요 나타날 영광에 참여할 자니라. 204 है ना? 너희 중에 있는 하나님의 양무리를 치되 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원하노라 하며 더러운 이득을 위하여 하지 말고 기꺼이 하며 맡은 자들에게 주장한 자세를 하지 말고 양무리에 본이 되라. 그리하면 목자장이 나타나실 때 시들지 아니하는 영광의 관을 얻으리라. 이렇게 말씀했어요. आमीन। हाँ जी, 1 से 4 तक पढ़े जरा, 1 से 4, 5वां बाब 1 से 4, पहला पतरस। तुम में जो बुजुर्ग हैं मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ कि खुदा की उस गलाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से गलाबानी ना करो बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं बल्कि दिल शौक से जो लोग तुम्हारे सुपुर्द है उन पर हुकूमत ना जताओ बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। और जब सरदार गलाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। आमीन आमीन 아멘. 그래서 5장 4절에 보면은 3절에 맡은 자들에게 주장한 자수하지 말고 양무리에 본이 되라라고 말씀합니다. और 5वां बाब उसकी 3री आयत में हम पढ़ते हैं, वो लिखा है और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं, जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ
बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। 충성된 일꾼은 양무리의 본이 되는 삶을 삽니다. तो जो लोग जो खादम है, खुदा के खादम है, उनको अपने लोगों के लिए नमूना बनने की खुदा जो है तौफीक अता करे, ताकि वो खुदा की अच्छी खिदमत कर सके। 아멘. आमीन, 할렐루야. आमीन। 큰 두 번째입니다. और दूसरा 일꾼의 नंबर, 자세입니다. 그리스도 일꾼의 자세입니다. और जो खुदा के मुबश्शिर हैं उनकी खूबियां। 네, 첫 번째입니다. 일꾼의 자세는 생명다의 복음을 증가할 수 있어야 됩니다. कि उसको अपनी जो जिंदगी है खुदा की गवाही के लिए सर्फ करनी चाहिए। 전도는 생명 가진 자가 생명 살리기 위해서 생명을 내어놓을 때 생명이 살아납니다. कि उसको अपनी जो जिंदगी खुदा ने दी है उसको गवाही के लिए अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए। ये है कि मुबशर के लिए खूबियां या उनके लिए शरायत। 우리는 복음제 대충 전해서는 안 되겠습니다. कि ऐसे ही नहीं कि हाँ जी वो जी ये मजबूरी के तहत नहीं, कि आपने मजबूरी है, बल्कि खुशी के साथ जो है खुदा की गवाही के लिए जिंदगी बसर करनी है। 예수님이 우리를 구원하시기 위해서 십자가에서 당신의 생명을 주셨습니다. और मसीह यीशु ने सलीब पर अपनी जान देकर आप सब लोगों को जिंदगी बख्शी है। 때문에 우리도 새 생명을 얻은 우리가 생명다의 복음을 전해야 될 줄로 믿습니다. तो ये है कि जब हमारे पास खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी दी है तो हमें भी अपनी जिंदगी उसकी खिदमत में सर्फ करनी चाहिए। 두 번째 일꾼의 자세입니다. तो दूसरी बात 고난 후에 영광을 볼 수 있어야 돼요. कि ये है कि उसकी खूबी क्या है या उसको मिलेगा क्या, कि मरने के बाद जो है खुदा उनको उनके अजर देगा। 전도자의 가는 길은 영광도 있지만 고난도 있습니다. और ये है कि मुबशरों को या खादमों को खुशियां भी होती हैं, लेकिन इन खुशियों के अंदर दुख भी मिलते हैं, मुश्किलें भी सहनी पड़ती हैं। 사도행전은 전도자의 발자취입니다. अगर आप रसूलों के माल पढ़ें तो ये है खादमों की तर्ज जिंदगी के किस तरह उन्हें जिंदगी बसर करनी चाहिए। 우리가 사도행전을 보면은 전도자의 발자취는 고난의 발자취였습니다. तो अगर हम रसूलों के माल पढ़ते हैं तो हमें उनके दुखों तकलीफों का अंदाजा भी होता है कि इब्तदाई कलीसिया के रसूलों ने लोगों ने ये मुनादी के लिए कितने दुख तकलीफें उठाई। 우리는 고난 앞에 무릎을 꿇지 않고 나타날 영광 바라보며 우리는 앞으로 가야 될 줄로 믿습니다. और हमें इन दुखों तकलीफों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, बल्कि खुदा के जलाल के लिए हमें मजबूत दिल, पक्के दिल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 그래서 바울은 로마서 8장 17절에서 18절에 이렇게 말씀합니다. तो इसलिए अगर हम रोमियो 8वां बाब देखें तो वहां पर हमें 7 ऐसे जो है पढ़ने को मिलता है कि पौलुस रसूल हमें क्या बताता है। 제가 읽어드립니다. 자녀의 힘은 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리와 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다라고 말씀했습니다. 목사님이 어디야? 로마 8장이요? 로마서 8장 17, 18절. ये अर्गसविदा देगा इल्गोसविदा। हाँ जी, ये रोमियो उसका 8 बाब उसकी 17 से 18 आता है। ये लिखा हुआ है अगर फरजांद हैं तो वारस भी हैं, यानी खुदा के वारस और मसीह के अमरास, ये बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं, क्योंकि हमारी दानस्त में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। आमीन, 아멘.
그래서 우리는 하나님의 일꾼의 자세, 고난만 바라보지 말고 나타날 영광을 바라볼 수 있어야 됩니다. तो ये है कि हमारी जो मुबश्शिर की शरायत है उनमें ये है कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। आमीन। 그리고 모든 사람을 축복할 수 있어야 돼요. तो तभी हम तमाम लोगों के लिए बाइसे बरकत होंगे। 원수라도 축복할 수 있는 자세를 가져야 됩니다. तो हमारे पास ये शरायत होनी चाहिए कि अगर दुश्मन भी हो तो उसके लिए भी हम बाइसे बरकत हो। 그리고 중요한 건 그리스도만 높이고 그리스도만 자랑해야 될 줄로 믿습니다. और ये है कि हमें मसीह के नाम को बुलंद करना है, मसीह के प्यार में हमने मसरूर रहना है मसीह, ताकि लोगों को मसीह का नाम दे सके। 다른 것으로는 사람을 살릴 수가 없습니다. और इसके बगैर हम इंसानों को, लोगों को की जिंदगियां बचा नहीं सकते। 오직 그리스도만 높이고 그리스도만 자랑하고 그리스도만 증거해야 될 줄로 믿습니다. और हमारा ये ईमान होना चाहिए कि हमने सिर्फ मसीह के नाम को बुलंद करना है, हमने मसीह को सिर्फ प्यार करना है और उसी प्यार में हमने मसीह की गवाही दूसरों तक पहुंचानी है, उसकी मुनादी करनी है। 그리고 마지막으로 일꾼의 자세, 예수 그리스도의 심장을 가져야 돼요. तो हमें आखिरी जो शर्त है कि हमें मसीह के वेदों का मसीह तक, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। 그리스도의 심장을 가진 자가 그리스도의 일꾼입니다. और जो मसीह को साथ लिए पड़ते, जिनमें मसीह की अक्ल सोच है, वो ही सिर्फ मसीह की मुनादी कर सकते हैं। 빌립보서 2장 1절에서 10절에는 예수님의 마음을 말씀하고 있습니다. अगर हम फिलिपियों देखें तो वहां पर जो है मसीह के दिल का जिक्र जो है वो हमें नजर आता है। 우리를 구원하기 위하여 하늘 영광 다 버리고 종의 몸을 입고 이 땅에 오셨다. 그렇게 말씀했습니다. 목사님, 어디 있어요? 필리피요 1장? 빌립보서 2장 1절에서 6절. ये हाँ जी, ये फिलिपियो दूसरा बाब 1 से 6 आता है। तो लिखा, तू मेरी खुशी पर हो, यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रहो, एक ख्याल में रहो, अपने से एक दूसरे को बेहतर समझो, वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का था। 2장 5절에서 8절까지 제가 읽어보겠습니다. ये हम दूसरा बाब वो 5 से 8 तक पढ़ेंगे। 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람과 같이 되셨고 사람의 모형으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 라고 말씀합니다. और ये तीसरी थी कि मसीह का मजाज रखने वाले आपको खादम होना चाहिए। और ये 5 से लिखा है, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। हमारे यहाँ पर मजाज लिखा है, लेकिन कोरियन में लिखा हुआ है कि मसीह जैसा दिल रखना। जैसा मसीह का दिल था, तुम्हारा दिल भी ऐसा ही होना चाहिए। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर कब्जे में रखने की चीज को ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आमीन। हमें भी ऐसा खादम बनना चाहिए। 우리는 이와 같이 그리스도의 심정을 가져야 병든 영혼, 죽은 세상 살릴 수 있습니다. कि हमारे अंदर भी मसीह जैसा दिल, मसीह जैसे मजाज होना चाहिए, तब ही हम दूसरे लोगों को बचा सकते हैं, नई जिंदगी बख्श सकते हैं। 자, 큰 세 번째입니다. 크게 세 번째. तो नंबर 3 일꾼의 중심입니다. और ये है कि काम करने वालों का
첫 번째는 그리스도 일꾼의 기본을 말씀드렸습니다. कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि बुनियादी चीजें जो हैं हमारे अंदर क्या होनी चाहिए। 두 번째는 그리스도 일꾼의 자세를 말씀드렸습니다. तो फिर मैंने दूसरी आपको बात बताई थी कि खुदा के खादमों की शराइत क्या होनी चाहिए, कौन सी बातें उनमें होनी चाहिए। 세 번째는 그리스도 일꾼의 중심이다. 이 가슴. हाँ जी, और ये है तीसरी बात है कि काम करने वालों की सोच महवर क्या होना चाहिए, 자, 어떤 중심이어야 되느냐? कि किस किस्म की आपकी सोच, आपका महवर, आपका मरकज होना चाहिए। 부모의 마음을 가져요. 부모의 마음. तो आपके पास वालदेन जैसा सोच और वालदेन जैसा दिल होना चाहिए। 여러분 부모의 마음 알지요? तो आपको पता है कि माँ बाप का दिल कैसा होता है। 부모는 자신의 모든 것을 투자해서 자식을 키웁니다. और माँ बाप जो है जितने मर्जी वो बुरे हों लेकिन उनको फिर भी प्रवान चढ़ाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनकी निगाहदाश्त करते हैं। 부모는 자식을 위해서 모든 생명을 모든 것을 다 내어놓는 분이 부모님. कि जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों की जिंदगी बढ़ाने के लिए, जिंदगी को बेहतर करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर अपनी आखिरी सांसों तक भी अपने बच्चों का साथ देते हैं, उनकी परवरिश में उनकी मदद करते हैं। 부모는 자식의 소모품이라고 합니다. और ये है कि बच्चे जो माँ बाप हैं वो आखिरी सांस तक भी अपने बच्चों के वफादार, फिर भी उनकी प्यार करने वाले होते हैं। 자식은 부모가 얼마만큼 자녀를 위해서 소모에 따라서 자식은 성공하느냐 실패하느냐 결정됩니다. तो मसीह के बारे में ही हमें पता चलता है कि वो किस हद तक खुदा से प्यार करते हैं, या उनकी जिंदगी कितनी कामयाब है या उतनी जिंदगी नाकाम है, ये हमें वहां से पता चलता है। 우리 그 목사님들 중에 거의 다 아버지 엄마가 되었을 겁니다. तो आप लोग भी जो मसीह के या खादम बैठे हुए हैं, आपके पास भी क्या उसे कहते हैं, आप भी माँ बाप हैं और आपको उन आपके बच्चों की कामयाबियों में, नाकामियों में आपका कितना हाथ है, आपको ये पता है। 제가 부모 마음이 어떤 것이라는 것을 말씀드리지 않아도 여러분이 더 잘 알 줄로 믿습니다. कि आपको भी इन चीजों का पता होना चाहिए कि आपने किस तरह करना है। 우리는 그리스도 일꾼의 중심, 부모의 마음을 갖자. 그렇게 말씀드립니다. तो हमारे पास भी मसीह का दिल होना चाहिए, मजाज होना चाहिए, ताकि हम माँ बाप की तरह जो है अपने बच्चों की नाकामियों में, कामयाबियों में कितने ही तरह ये जान सके। 두 번째는 우리의 삶이 복음이어야 됩니다. तो आगे है कि हमारी जो जिंदगी है वो कलाम के मुताबिक बसर होनी चाहिए। 율법으로는 사람을 살릴 수 없습니다. कि यूल्प यानी कि शरीयत के मुताबिक हम लोगों की जिंदगियां बचा नहीं सकते, 종교로도 사람을 살릴 수 없습니다. और ना ही किसी इल्म से हम लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं, 신비로도 사람을 살릴 수 없습니다. और ना ही लोगों की जिंदगियां जो हैं हम करिश्माती मौजजाती कामों की वजह से लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। 예수가 그리스도라는 복음만이 사람을 살릴 수 있습니다. ये खुदा मसीह का कलाम जो खुशखबरी है, इसके जरिए जो जिंदगी है, इसके जरिए ही हम सिर्फ लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। 그리고 병든 세상, 병든 인간 치료해 줄 수 있습니다. तो हम इस बीमार दुनिया को, इस बीमार लोगों को सिर्फ मसीह के जरिए ही शफा दे सकते हैं। 우리는 삶이 복음을 해야 이해하고 용서하고
수용하고 모든 것을 뛰어넘을 수 있습니다. तो तभी हम कलाम के जरिए इन तमाम मुश्किलात पर, इन दुखों पर, इन मुश्किल राहों पर, इन कांटे बिछे रास्तों पर से हम आगे बढ़ सकते हैं। 우리가 삶이 복음이라야 하나님은 제자를 붙여주십니다. तो हमारी जिंदगी मसीह के साथ होगी, खुदा के साथ बसर होगी, तब ही हम खुदा के अच्छे शागिर्द बन सकते हैं। 복음으로 사람을 살려야 하나님은 죽은 영혼을 붙여주십니다. और ये है कि कलाम के जरिए ही लोगों की जिंदगी बचाएंगे, तभी खुदा अपने लोगों को तुम्हारे साथ मिलाएगा। 그다음 세 번째입니다. तीसरी बात, 우리의 삶이 하나님의 역사 앞에 겸손해야 됩니다. तो खुदा के कलाम के सामने हमें आजिज होना चाहिए, ताबेदार होना चाहिए 우리는 하나님의 종입니다. कि हम जो है खुदा के खादम हैं। 하나님이 세우신 하나님의 일꾼입니다. तो खुदा ने हमें खुद जो है अपने खादम जो होने का शरफ बख्शा है या खादम मुकर्रर किया है। 하나님이 기름 부어 세우신 목회자입니다. और खुदा ने हमें अपनी इस खिदमत के लिए मखसूस किया है। 우리는 늘 하나님의 역사 앞에 겸손한 자세를 가져야 됩니다. तो हमें खुदा के सामने ताबेदारी के साथ आजिज बनकर रहना चाहिए। 하나님은 교만한 자를 물리치고 겸손한 자에게 은혜를 주신다고 하셨습니다. और खुदा ने कहा है कि जो लोग ताबेदार वफादार रहेंगे उनको ही मैं बरकत दूंगा। खुदा घमंडियों और तकब्बर करने वालों को बरकत नहीं देता। 교만은 사단의 무기고 겸손은 하나님의 무기입니다. और जो तकब्बर करते हैं, मगरूर होते हैं, वो शैतान के आलाकार है, लेकिन जो आजिज हलीम होते हैं वो खुदा के खादम होते हैं, खुदा के लोग होते हैं। 교만이 갖다 준 인간의 비극이 창세기 3장의 저주였습니다. और जो तकब्बर घुमंडी लोग होते हैं वो तीसरे बाब की लानत में गिरफ्तार होते हैं। 그래서 우리는 항상 성령의 역사 앞에 겸손한 전도자, 하나님의 일꾼, 주의 종이 되어야 될 줄로 믿습니다. कि हमें पाक रूह की ममूरी के साथ खुदा के कलाम के अंदर रहते हुए हमेशा आजिज ताबेदार रहना चाहिए। 그리고 우리는 중심 하나님의 능력을 믿는 믿음을 가져야 됩니다. तो हमें खुदा की कुवत पर ईमान रखने का भी हमारी पूरा ईमान होना चाहिए। ये हमारे पास कुवत होनी चाहिए खुदा की कुवत पर। 4장 19절에서 21절을 제가 읽어보겠습니다. 어디에서 목사님 다시 한번. 네, 고린도전서 4장 19절에서 21절, 18절에서 21절. कोरिन्थोस 예, 고린도전서. आइए 알겠습니다. 4장 18절에서 21절 제가 읽어볼게요. 예. 자, 어떤 이들은 내가 너에게 나가지 않을 것 같이 스스로 교만하여 졌으나 주께서 허락하시면 내가 너에게 속히 나아가서 교만한 자들의 말이 아니라 오직 그 능력을 알아보겠으니 하나님의 나라는 말이 있지 아니하고 오직 능력에 있습니다. 내가 너희가 무엇을 원하느냐? 내가 매를 가지고 너에게 나아가라. 사랑과 온유한 마음으로 나아가라. 이렇게 말씀합니다. हाँ जी, ये लिख ले आपने। पहला करंथियों उसका चौथा बाब और उसकी 18 से 21 तक। हाँ जी, मैं पढ़ने लगा हूँ। अब देखने आप भी साथ देखा करें जब मैं पढ़ता हूँ, ताकि आपको पता चले कि अल्फाज हमें क्या कहता लिखा हुआ है। बाज ऐसे शेखी मारते हैं कि गोया मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं,
लेकिन खुदा ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास जल्द आऊंगा और शेखी बाजों की बातों को नहीं बल्कि उनकी कुदरत को मालूम करूंगा, क्योंकि खुदा की 아멘. बादशाही आमीन अच्छा का माने क्योंकि खुदा की बादशाही बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर माकूफ है। तुम क्या चाहते हो कि मैं लकड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या मोहब्बत और नरम मजाजी से? आमीन। 아멘. 여기 보면은 교만하지만 겸손하라고 말씀합니다. तो ये क्या लिखा हुआ है कि मोहब्बत और नरम मजाजी के साथ, हलीमी के साथ 하나님, तुम्हारे पास आना चाहिए। 그리고 하나님의 나라는 말에 있지 않고 능력에 있다고 말씀했습니다. इसलिए कि खुदा की बादशाही जो बातों पर नहीं बल्कि किस पर है? कुदरत पर मकूफ है। 그래서 우리는 하나님의 능력을 믿는 믿음을 가져야 됩니다. तो हमारे पास खुदा की कुदरत पर ईमान रखने का पूरा एतमाद होना चाहिए। खुदा की कुदरत पर ईमान होना चाहिए। ये इसके साथ हम खुदा की खादम बन सकते हैं। 말 잘하는 건 변호사가 말을 잘합니다. तो अगर आप देखें कि जो बातें बनाना जानते हैं ना, वो सबसे ज्यादा वकील बातें बनाना जानते हैं। वो गुर जानते हैं कि किस तरह बातें बनाकर लोगों को पहुंचाना है। 우리는 말 잘 못해도 괜찮습니다. 하나님의 तो हमारे 능력을 믿으면 됩니다. अगर आपके पास ज्यादा लबाने वाली बातें, दूसरों को पहुंचाने वाली बातें नहीं, लेकिन आपके पास खुदा का कलाम होना जरूरी है। 우리는 말로 사람을 살리는 것이 아니고 복음과 하나님의 능력으로 죽은 영혼 살립니다. तो हमने लोगों की जिंदगियों को बातों से नहीं बल्कि मरी हुई रूहों को खुदा के खुशखबरी कलाम गॉस्पेल के जरिए बचाना। 이번 강의에 꼭 잡아야 될 말씀 4장 20절 하나님의 나라에는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있다. 꼭 언약 잡아야 될 줄로 믿습니다. तो आपके पास जो आज है पहला करंतियों, जो आपने जो याद रखनी है, अपने दिलों में आयत बिठानी है, वो चौथा बाब उसकी 20वीं है, क्योंकि खुदा की बादशाही बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मकूफ है। खुदा आप सबको इस पर ईमान रखने की तौफीक अता करे। आमीन। 아멘. 그래서 예수님도 제자들에게 오직 성령 임하면 권능 받으면은 땅까지 증인되리라고 말씀하셨습니다. इसीलिए मसीह यीशु ने भी अपने शिगिर्दों को ये बात कही थी कि जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। 그리고 마지막으로 하나님의 일꾼의 중심, 사랑과 온유한 마음을 가져라. 그렇게 21절에 말을 합니다. तो ये है कि 21वीं आयत है कि क्या है कि मोहब्बत और नरमजाजी से खुदा की खिदमत को सरअंजाम दो। 사랑은 우리가 많이 들어서 잘 압니다. तो हम मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं और सुना है 하나님의 사랑입니다. कि खुदा मोहब्बत है 독생자 주신 하나님의 사랑입니다. और ये उसकी मोहब्बत है कि उसने अपना इकलौता बेटा जो है हमें बख्शा हुआ है। 온유란 말은 잘 못 들어봤을 겁니다. कि जो मोहब्बत के काम नहीं करता लोग उसकी बात को नहीं सुनते। 이 온유는 세상 말로 얘기하면 부드러움입니다. 부드러움. कि जो दुनियावी बातें हैं वो बड़ी नरम और लोगों को फंसाने वाली, लबाने वाली और प्यारी बातें लगती हैं। 우리가 모든 사람을 수용할 수 있는 복음적이 돼야 됩니다. तो हमें भी खुदा के कलाम को सख्त तो है लेकिन उसको मोहब्बत और नरम मजाजी के साथ लोगों तक पहुंचाना चाहिए। 반대로 누구든지 나를 믿고 나에게 모든 것을 부탁할 수 있는 그런 온유한 사람이 돼야 돼요. तो हमें ऐसा लोग खादम बनना चाहिए कि तमाम लोग जो भी हमसे पूछे उसका मोहब्बत और नरमजाजी के साथ
हलीमी के साथ उनको जवाब देने वाले हों। 온유한 사람에게 사람은 따라옵니다. कि जो लोग हलीमी के साथ, नरमजाजी के साथ लोगों को जवाब देते, उनकी खिदमत करते, लोग खुद ब खुद उनके पीछे चलते हैं। 특히 목회자는 너무 강하거나 너무 딱딱하면은 사람이 따르지 않습니다. कि अगर एक खादम बड़ा सख्त मजाज और तेज तरार हो तो लोग उसके पीछे भी नहीं आते। 늘 목사님 보면 편안하고 그냥 따르고 싶은, 모든 문제라도 대화하고 싶은 그런 부드러운 온유한 사람이 돼야 돼요. ये पास्टर को जितने मर्जी आप खुद मसाइल हो, लेकिन दूसरों के सामने उसे मुकम्मल तौर पर अपने आप को तब्दील दिखाना चाहिए। नरमजाजी के साथ उनके सवालों का जवाब, उनके साथ हलीमी के साथ पेश आना चाहिए, तभी लोग खादम के पीछे चलते हैं। 그때 많은 제자가 일어나게 될 겁니다. तो तब ही शिगिर्दों में इजाफा होता है। 여러분들도 현장에서 이런 경험을 많이 했을 줄로 믿습니다. और मेरा ईमान है कि खुदा इस किस्म का एक्सपीरियंस आपको फील्ड में जरूर करने की तौफीक अता करेगा। आमीन। 이제 결론입니다. तो नतीजा, 우리는 하나님이 부르신 전도자요 목회자입니다. कि हम खुदा के बुलाए हुए एवेंजलिस्ट, मुबश्शिर, खादम हैं। 전도자와 목회자는 세상 사람과 구별된 사람들. और हम दुनिया को तब्दील करने वाले, दुनिया को बचाने वाले उसके चुने हुए खादम हैं। 전도자와 목회자는 교회 세우고 영혼 살리고 제자 세우는 일입니다. और मुबश्शिरों का, पास्टर्स का काम क्या है? हमेशा के लिए नए खादम तैयार करके लोगों को जिंदगी बख्शना। 그래서 다른 말 우리는 하나님의 비밀을 맡은 사람들입니다. तो इसीलिए हम क्या कौन है? खुदा के खादम पास्टर कौन है? जिनके खुदा के वेदों का मुख्तार है, जिनके सपुर्द खुदा ने अपने वेद किए हुए हैं। 하나님의 비밀 맡은 자는 기본을 잘 갖춰야 됩니다. तो बुनियादी चीजें जो हैं वो खादमों को, पास्टर्स को मालूम होनी चाहिए। 그걸 제가 첫 번째 말씀드렸습니다. तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई। 그리고 어떤 자세를 가지고 해야 되느냐, 그걸 두 번째로 말씀드렸습니다. तो मैंने आपको ये भी बताया था दूसरी बात कि किस तरह का जो हमारे अंदर शरायत होनी चाहिए, किस तरह की खूबियां होनी चाहिए कि हमें क्या लेकर खुदा के सामने लोगों के सामने जाना है। 세 번째는 중심에 대해서 말씀드렸습니다. तो मैंने कहा था कि आपकी सोच, आपका मरकज क्या होना चाहिए, आपका महवर क्या होना चाहिए। 말씀의 언약 잡고 응답의 축복을 누리기를 주의 이름으로 축복합니다. खुदा आप सबको कलाम में मसरूर रहने की, जवाब हासिल करने की तौफीक दे और खुदा आप सब की इस दुआओं का जवाब आपको अता करे। आमीन।